السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی سلامتی اور مجموعی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے 12 نکاتی ایجنڈے پر بحث کی اور متعدد کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے مہنگائی کے معاملے کی تہہ تک جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پشاور کے علاقے دیر کالونی میں مدرسے میں ہونے والے دھماکے میں 7 افراد جاں بحق جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مدرسے میں IED دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے زخمیوں میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے۔ پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ IG خیبر پختونخوا ثناء اللہ عباسی کا کہنا ہے کہ پشاور دھماکے میں 5 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ IG خیبر پختونخوا نے دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ پشاور دھماکے کے بعد کچھ لوگ باجوڑ سے پکڑے گئے ہیں۔ دھماکے کی تفتیش جاری ہے، تاہم اسے میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر انہوں نے دھماکے میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کرکے کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ IG سندھ نے کراچی سمیت سندھ بھر میں الرٹ جاری رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ IG سندھ نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی سطح پر سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پشاور کی دیر کالونی میں مسجد سے ملحق مدرسے میں دھماکے سے متاثر ہونے والے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پشاور میں مدرسے کے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردی سے جنگ میں پوری قوم مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم دہشت گردی کے عفریت کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی تسلط کو 73 برس مکمل ہو گئے۔ دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ اس موقع پر مقبوضہ وادی میں حریت قیادت نے ہڑتال کی کال دی ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی فوج نے کشمیر میں اتار کر غیر قانونی قبضہ کر لیا، جو ابھی تک قائم ہے۔ یہ دن مقبوضہ کشمیر کے لیے دنیا کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ 73 برس قبل اس تاریخ کو ہندوستان نے تمام عالمی قوانین کو پامال کرتے ہوئے نہ صرف کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا بلکہ ظلم و بربریت کی ایک نئی داستان رقم کی۔ یوم یکجہتی کشمیر اور یوم سیاہ کے موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت اور اس کی آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے قدم اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو کشمیری عوام، پاکستان اور عالمی برادری نے مسترد کیا۔ بھارت کے اقدامات بین الاقوامی قوانین، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں سے بھارتی وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہے گا۔ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے کام کرے۔ یوم یکجہتی کشمیر اور یوم سیاہ پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارتی غیر قانونی قبضے کی مذمت پر یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ آج کے دن ہم کشمیری عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 73 سال قبل بھارتی فورسز نے کشمیر پر زبردستی قبضہ کیا۔ 7 دہائیوں بعد بھی بھارت کشمیری عوام کا عزم توڑنے میں ناکام ہے۔ کشمیر پر بھارتی مظالم کے خلاف یوم سیاہ پر پاکستان نے بھرپور احتجاج کرتے ہوئے بھارت کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے کہ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی ناظم الامور کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے نہتے کشمیریوں کے انسانی حقوق کو پامالیوں اور یوم سیاہ کے حوالے سے طلب کیا گیا۔ اسکردو میں جلسے سے خطاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ذوالفقار بھٹو نے گلگت بلتستان کے عوام کو آزاد کروایا۔ بے نظیر بھٹو نے گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کی۔ آصف زرداری نے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا۔ مہدی شاہ نے گلگت بلتستان کے 25,000 جوانوں کو روزگار دلوایا، لیکن پیپلز پارٹی حکومت کے بعد ان نوجوانوں کا روزگار چھین لیا گیا۔ اب پیپلز پارٹی کی نئی نسل کی جدوجہد شروع ہو چکی ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की नैब की दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला था, ताहम लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इनका नाम ECL से निकाल दिया गया था। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ से मुलाकात इनकी गिरफ्तारी के तीसरे रोज हुई थी, मगर इसमें ना कोई पैगाम दिया गया और ना लिया गया। एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि शहबाज शरीफ से मुलाकात DG नैब की मौजूदगी में हुई थी। इनका ये भी कहना था कि शहबाज शरीफ से मुलाकात से पहले नवाज शरीफ को आगाह कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता कि मुलाकात कैसे तय हुई, हमें सिर्फ शहबाज शरीफ के दफ्तर से फोन आया कि आप लोगों ने मिलने जाना है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन तंजीम के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच ने PDM की जानिब से कोयटा जलसे में लापता अफराद के अहल खाना से हमदर्दी के इजहार को मदारी का तमाशा करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। भूख हड़ताली कैंप से अपने एक वीडियो बयान में मामा कदीर बलोच ने कहा कि लापता अफराद या बलोचिस्तान का मसला बलोची लिबास पहनने से हल नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के अदवार में बलोचिस्तान से मसख्शुदा लाशें मिलती रहीं। उस वक्त मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ थे? अमेरिका को इंतहाई मतलूब अलकायदा के नंबर 2 रहनुमा अल-मिस्री को फौजी ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया। फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक अमेरिका को इंतहाई मतलूब अलकायदा रहनुमा अबू मोहसिन अल-मिस्री को अफगानिस्तान में हलाक कर दिया गया है। अफगानिस्तान फोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के वफाकी तफ्तीशी इदारे FBI की इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के सीनियर लीडर अबू मोहसिन अल-मिस्री को हलाक कर दिया। अफगानिस्तान के सिक्योरिटी इदारे NDS ने ट्वीट में बताया कि अल-मिस्री को अफगान सूबा गजनी में होने वाले खुसूसी ऑपरेशन के दौरान हलाक किया गया। खबर रसाई इदारे राइटर्स के मुताबिक अमरीकी इदारा बराए नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के सरबराह क्रिस मिलर ने भी अल-मिस्री की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा है कि अल-मिस्री की हलाकत दहशतगर्द तंजीम के लिए एक बड़ा धचका है। शाम में इत्तेहादी अफवाज की बागियों के मुबैना तरबियत गाहों पर बमबारी में 56 जंगजू हलाक और 50 से जायद जख्मी हो गए। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक शाम में सूबे अदलब के शुमाल मगरबी इलाके में रूस के जंगी तैयारों ने शदीद बमबारी की। फजाई हमले हुकूमत मुखालिफ बागियों के ठिकानों पर किए गए। बमबारी में हलाक होने वाले जंगजुओं को तुर्की की हिमायत हासिल थी। इससे कबल भी रूस और तुर्की हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रोहों में झड़पें होती रही हैं, जिसके बाद दोनों के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा भी हुआ था। आलमी इदारा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस की आलमी वबा के बारे में नई वार्निंग जारी कर दी गई है। मौसम सरमा के आगाज से कबल ही यूरोप समेत दुनिया के मुताबिक ममालिक में कोरोना वायरस के केसों में बदस्तूर इजाफा नोट किया जा रहा है। इससे मुतालिक आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना की नई लहर को रोकने की खातिर ज्यादा फाल अंदाज इख्तियार करना होगा। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया और कई अहम फैसले किए गए। इजलास में गंदम की इमदादी कीमत में 200 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपये फीमन मुकर्रर कर दी गई है। ताइवान और अमेरिका के दरमियान असलहे की फरोख्त की डील पर बीजिंग हुकूमत ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी मुफादात और मुल्की सालमियत की खातिर ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। अमेरिका ने ताइवान के साथ $2.4 बिलियन की एक अहम डील को हतमी शक्ल दी है। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा आदात-ओ-शुमार के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 14 पैसे की कमी वाक़ हुई है। फॉरेक्स डीलर के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 161.05 से कम होकर 160.91 रुपये पर बंद हुआ है। कोयटा में रोटी की कीमतों में इजाफे का मुतालबा लिए नान भाइयों की हड़ताल कई रोज से जारी है। नान भाइयों का कहना है कि कोयटा में आटे की कीमत में मजीद इजाफे के बाद फाइन आटे का 20 किलो थैला 50 रुपये इजाफे के बाद 1300 रुपये और कराची के चक्की आटे का 10 किलो का थैला 790 रुपये का फरोख्त हो रहा है। दुबई के हुकाम ने दुबई का सफ़र करने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। मुसाफिरों को खबरदार किया गया है कि सिर्फ दुबई में रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दुबई एयरपोर्ट पर काबिल कबूल होगी। इससे पहले सफरी शराइत पूरी ना किए जाने पर सैकड़ों पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से वापस वतन भेजा जा चुका है।
भारतीय पंजाब में सिखों ने रिवायती त्यौहार दशहरा मनाने के दौरान शैतान रावण को नजर आतिश करने की रिवायत तोड़ते हुए इस बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पुतले जला दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुल्क में दशहरा का त्यौहार मनाया गया, जिसमें सबसे बड़े शैतान रावण को जलाकर भस्म कर दिया जाता है और सदियों से रिवायत जारी है। लेकिन इस साल भारतीय पंजाब में सिखों ने शैतान रावण के बजाय मोदी के पुतले जला दिए। इस हवाले से किसान यूनियन के अहदेदारों ने मीडिया को बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के लिए सबसे बड़ा शैतान साबित हुए हैं, इसलिए दशहरा के मौके पर इस बड़े शैतान को जलाने से मुल्क में सुकून हो जाएगा। अमरीकी खलाई इदारे नासा के साइंसदानों ने चांद पर पानी की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नासा के साइंसदानों ने दावा किया कि कमरी मिट्टी के 1 मुकाब मीटर में पानी की मिकदार 12 औंस के बराबर है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम बैडियन स्टाइन ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए अपने पैगाम में बताया कि हमने सोवियत टेलीस्कोप की मदद से चांद पर मौजूद पानी दरियाफ्त कर लिया है। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर गुस्से में आ गए। सहाफ़ी ने फवाद आलम से सवाल किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने के बाद फवाद आलम सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट का रह गया है। फवाद आलम ने जवाब देते हुए कहा, ये कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। वाज़ेह रहे कि सिंध की टीम ने फवाद आलम की जिम्मेदाराना बैटिंग की बदौलत सेंट्रल पंजाब के खिलाफ फाइट बैक कर लिया है। पीसीबी का कहना है कि पाक जिम्बाब्वे सीरीज में शामिल खिलाड़ियों, मैनेजमेंट स्टाफ और मैच ऑफिशियल्स समेत तमाम 107 लोगों के कोरोना टेस्ट दोबारा मनफी आ गए हैं। तर्जुमान पीसीबी का कहना है कि कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। 28, 27 और 29 तारीख को जिम्बाब्वे की टीम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 एक रोजा और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स के ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन बेंटंग एक बार फिर लीग में चौकों और छक्कों की बरसात के लिए तैयार हैं। बेंटंग ने कहा कि वो PSL के बकिया मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और इस अज़्म के साथ आ रहे हैं कि गुज़िश्ता 7-8 माह से परेशानियों के शिकार लोगों को कुछ खुशियाँ दे सकें। साबिक रुकन कौमी असम्बली और वफाकी मुहतसिब इंसदाद हिरासानी कशमाला तारिक ने अपनी ढोलकी पर अहल खाना के साथ खूबसूरत डांस किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। साबिक MPA कशमाला तारिक बिजनेसमैन वक्कास खान के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार शान शाहिद का कहना है कि इर्तुगरुल गाजी एक बेहतरीन ड्रामा है। वो चाहते हैं कि लोगों को ये भी मालूम हो कि इस्लाम बरे सगीर में कैसे आया। पाकिस्तान टेलीविजन एक अरसे तक बेहतरीन कहानियों और मजबूत किरदारों की वजह से मुनफरिद पहचान रखता था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान PTV के ड्रामे पसे पुष्ट चले गए। अपने हालिया इंटरव्यू में शान ने जहां तुर्क ड्रामे की तारीफ की, वहीं सवाल उठाया कि पिछले 10 से 15 सालों के दौरान PTV सारिफीन के लिए अच्छा मवाद क्यों नहीं पेश कर सका। अदाकार शान शाहिद ने कहा कि इर्तुगरुल गाजी एक बेहतरीन ड्रामा है। मैं चाहता हूं कि लोगों को ये भी मालूम हो कि इस्लाम बरसगीर में कैसे आया। उन्होंने कहा कि इस तारीखी मौजू पर ड्रामा या सीरीज बननी चाहिए कि इस्लाम इस खित्ते में कैसे आया और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को इस पर काम करना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।